Hi guys. So today our topic of conversation is basically the anterior forearm. When we're talking about the anterior forearm, we're basically talking about the flexors and the pronators. When we talk about the pronators, we have pronator quadratus, we have pronator teres. Um, Talking about the flexors and pronators, they're present in the anterior forearm. If you try to imagine if for example, I take a piece of cloth and I attach it to the inside of your palm and attach it to your anterior forearm, and then I try to pull this piece of cloth, what will happen to your arm is basically what we call flexion, right? And if I put a piece of cloth and I attach it to your posterior fingers and I attach it to your posterior forearm, and then I contract or pull that piece of cloth, what will happen as a result of that contraction is basically extension. So, whenever we talk about the anterior forearm, we basically talk about the flexors, and whenever we talk about the posterior forearm, we're talking about the extensors. Okay. Now, both of these muscle groups are separated by the interosseous membrane. Why? Because the radius and ulna in the forearm are separated by the interosseous membrane. Some of the muscles, when they have wide origins and insertion, also take their origin and insertions from the interosseous membrane in between these two bones. Okay. So when we talk about our anterior forearm, we have muscles in layers. Remember that the forearm is not as simple as the arm. We studied that in the arm, on the anterior arm, we had the biceps brachii, we had the coracobrachialis, and then we had the brachialis. I was fairly simply straightforward. We had the musculocutaneous nerve supplying these muscles, and their main work was just flexion. Bicep brachii was helping little bit in the supination also, but main work was just flexion, and there was this big biceps brachii bulky muscle with two heads. And then on the posterior side was fairly easy because we only had the triceps with three heads and the radial nerve supplying them. So the arm was fairly straightforward, right? And biceps and triceps is something you've been learning and listening to since you were very young, right? But when we come to anterior forearm, the muscles are very difficult and it is not easy to remember the names of these muscles. Okay. So what I will suggest is that as we're going through these muscles, try and learn these names. If you try, the more you learn the names, the better your anatomy becomes, because these names are not conceptual. Obviously, I will give you the meanings of their Latin words, but learning their names comes with memory. You have to keep on learning them, and the better you get at learning the names, the anatomy will come simply to you. Okay. So in the when we talk about the anterior forearm, our most superficial layer, when we'll talk about that now. Pronator, we take these four fingers and we place them on our arm from the medial epicondyle. Remember, all the flexors originate from the medial epicondyle and all the extensors originate from the lateral epicondyle. Okay. Not all actually, but mainly. So we have these four superficial layer flexors that all originate from the medial epicondyle of the humerus. So it's easy that the origin of all these four muscles is clear, but the insertion we will study while we study each muscle, right? So if I take these four fingers with my index finger being the most medial, right? So if I take these four fingers, this is my index finger, my middle finger, and then my ring finger and my pinky finger, and I take my um forearm, okay, and I place my fingers like this, right? Can you place your fingers like this? So your most medial finger is going to be your pronator teres. Sorry. The most lateral finger is going to be the pronator teres. Then we're going to have this muscle, which is the flexor carpi radialis. This is the most lateral tendon in the arm when we are inserting it into the wrist. So on the wrist, the most prominent tendon you can see is palmaris longus, right? Now, lateral 1 centimeter lateral to this tendon of palmaris longus is the flexor carpi radialis, and just medial to the palmaris longus is the flexor carpi ulnaris, and that is happens to also be the most lateral tendon in the wrist. Okay. Now what happens with the palmaris longus? Now I told you that the pronator teres was the most lateral, so the pinky finger was represented by the pronator teres, because when we place it on the forearm, your pinky finger will be
explaining the most lateral of the four muscles, right? So that will be pronator teres. Then we have the flexor carpi radialis, and then we have the palmaris longus, which sort of happens to be in the middle because and it is also the middle tendon inserting into the wrist. And then we happen to have the flexor carpi ulnaris. So these are the four muscles: pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, and flexor carpi ulnaris. I've sort of told you their insertions also, but remember that the palmaris longus, the middle tendon, it opens up into palmar aponeurosis when it passes in the hand. Now, palmar aponeurosis somehow gives the tenseness and rigidity in our palmar surface of the hand. The action and innervation of most of the superficial layer of the forearm muscles are supplied by the median nerve. The only thing that in this superficial layer that is not supplied by the median nerve is flexor carpi ulnaris. And the name gives it away. It's ulnaris, so it's supplied by the ulnar nerve. Remember that. Moving on. Now we'll do these muscles one by one. This is what I was trying to show you. So if you basically take your these four fingers without the thumb of your left hand and place them on the medial epicondyle of your right arm, okay? So your pinky finger will become flexor carpi ulnaris, and then your ring finger will become palmaris longus, and then your middle finger will become flexor carpi radialis, and your index finger will become pronator teres, right? This is the cubital fossa, and the boundaries of the cubital fossa are very important for you. The contents are very important. This is the palmaris longus tendon I was telling you about. Now, lateral to the palmaris longus, 1 centimeter lateral to the palmaris longus tendon is the tendon of the flexor carpi radialis. Ab dekho, it's originating from the medial epicondyle and is going all the way into the palmaris, into the wrist, medial 1 centimeter lateral to the palmaris longus. Now, medial to the palmaris longus will be the, can anyone tell me? The flexor carpi ulnaris, most medial in the wrist. Moving on now, one by one, we'll do the muscles. Pronator teres, the common flexor. When we talk about the common flexor tendon, क्या मतलब है common flexor tendon का? जब भी हम flexors की बात करें, ये medial epicondyle से आ रहे हैं. जब भी हम extensors की बात करें, ये lateral epicondyle से आ रहे हैं. तो medial epicondyle से हमारी ये चार muscles आ गए. Pronator teres आ गया. यहाँ पे हमने पढ़ा फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस आ गया, पामारिस लॉन्गस आ गया, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस आ गया. और हमें पता है कि पामारिस लॉन्गस हाथ में जाके पामर एपिन्यूरोसिस बना रहे हैं, जो कि एक टेंस लाइक फेशिया स्किन स्मूथ सी है फेशिया की स्किन के नीचे. हमारी पामर सरफेस को ये टेंसनेस और रिजिडिटी दे रही है. कुछ लोगों में ये नहीं होती और उनकी स्किन आपको थोड़ी लूज सी फील होती है, राइट? अब हम आगे चलते हैं. प्रोनेटर टेरिस जो है अपना नाम से बता रहा है कि ये प्रोनेशन कराएगा. इसकी मेन एक्शन क्या है? इट्स फोरआर्म प्रोनेशन. इसकी इनर्वेशन क्या है? सारे फ्लेक्सर्स की मीडियन नर्व थी. इंसर्शन है लैटरल सरफेस ऑफ रेडियल शाफ्ट. ठीक है. प्रोनेटर टेरिस कॉमन फ्लेक्सर टेंडन से आ गया मीडियल एपिकॉन्डाइल, हाँ, और थोड़ा सा हेड ये इसका लेता है मीडियल कोरोनॉइड प्रोसेस से, और इंसर्शन है इसकी लैटरल सरफेस ऑफ रेडियल शाफ्ट. ये देखो, ये अल्नर हेड निकला और ये यूमरल हेड निकला. ठीक है, यूमरल हेड ऑब्वियसली हमें पता है मीडियल एपिकॉन्डाइल से आ रहा है क्योंकि कॉमन फ्लेक्सर टेंडन से आ रहा है, लेकिन अल्नर हेड जो है वो मीडियल कोरोनॉइड प्रोसेस से आ रहा है. कोरोनॉइड प्रोसेस आई होप आप लोगों को अल्लाह का याद है. तो अल्नर हेड वहां से आ रहा है, यूमरल हेड वहां से आ रहा है. दो हेड्स होते हैं प्रोनेटर टीरीज के, और प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स के बीच में कौन सी नर्व गुजरती है? मीडियन नर्व. और प्रोनेटर टीरीज के डीप हेड के नीचे से कौन सी आर्टरी गुजरती है? We will come back to that. Okay. I don't want to give the answer right away because I don't want to be wrong, so I will come to that later. But there is an artery that goes deep to the deep head of the pronator teres. Moving on, we have the lateral insertion, जो कि lateral surface of radial shaft पे आएगी. Remember, जब भी हम कोई चीज pronate करवा रहे हैं, जब भी हम pronation और supination में काम कर रहे हैं, तो the muscle will overlap on two bones. Pronation और supination क्या है? You pronate to produce and you supinate when your palms are facing the sky. तो pronation और supination में the radius overturns on the ulna. For the radius to overturn on the ulna, the muscle has to cross two bones to be able to do that. क्या ulna से radius पे जाएगा या radius ulna पे आएगा? अब इसका जो ulnar head है वो coronoid process से radial shaft तक जा रहा है. That is why it is able to create the pronation movement.
आई रियली होप दिस कॉन्सेप्ट वॉज क्लियर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगा हर प्रोनेटर और सुपिनेटर पे। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, रेडियालिस की हम जब भी बात करेंगे लैटरल बात करेंगे, अल्नारिस की हम जब भी बात करेंगे अल्नर मीडियल साइड पे बात करेंगे। तो कार्पाई रेडियालिस आपका सबसे लैटरल टेंडन है जो रिस्ट में इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट में इंसर्ट हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस दो मेटाकार्पल्स की बेसिस पे जा रहा है, सेकंड मेटाकार्पल और थर्ड मेटाकार्पल, और शुरू ये कॉमन फ्लेक्सर टेंडन से हो रहा है तो ये भी मीडियल एपिकॉन्डाइल से शुरू होगा, लेकिन ये सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल दोनों की बेसिस पे जा रहा है। तो ये क्या क्या करा सकता है, इनर्वेशन ऑब्वियसली इसकी मीडियन नर्व है क्योंकि सारे फ्लेक्सर्स ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल की मीडियन नर्व है, सवाए फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की। एक्शन क्या है, फ्लेक्शन कराएगा, नाम ही फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस से फ्लेक्शन कराएगा। अब एबडक्शन और रेडियल डिविएशन भी करा रहा है। एबडक्शन क्या थी कि bringing your fingers away from the midline reference, you're abducting your fingers, and radial deviation of the second and third metacarpal। ठीक हो गया, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल की रेडियल डिविएशन, ठीक है, दे गोइंग टुवर्ड्स द लैटरल साइड नॉट टुवर्ड्स द मीडियल साइड, तो इसकी रेडियल डिविएशन और इसी वजह से आपकी रिस्ट की रेडियल डिविएशन। रिस्ट की रेडियल डिविएशन क्यों करवाएगा, क्योंकि देखो ये रिस्ट की रेडियल साइड पे पड़ा हुआ है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से रिस्ट रेडियल साइड पे थंब की साइड पे जाएगी। तो फ्लेक्शन, एबडक्शन और रेडियल डिविएशन ऑफ द रिस्ट इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप सिर्फ ये समझ जाएं कि ये सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल पे लग रहा है। पामारिस लॉन्गेस्ट मैंने बताया था कि ये मिडिल वाला टेंडन है, ठीक है, और ये जाके हाथ में एपिन्यूरोसिस बनाता है। हाथ में एपिन्यूरोसिस बनाएगा अगर ऐसे फैल के, और इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, मेरी रिस्ट ही फ्लेक्स हो जाएगी, राइट। अगर मेरे पास एक लंबा सा टेंडन है और जाके हाथ में स्प्रेड हो रहा है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूं तो मेरी रिस्ट फ्लेक्स होगी। Palmaris longus सब में नहीं होता, but it is approximately 70% of all the population. Origin common flexor tendon, and insertion it becomes the palmar aponeurosis. Flexor carpi ulnaris, I told you, it is the only muscle in the superficial layer of the anterior forearm which is supplied by the ulnar nerve, and the name itself gives it away. Common flexor tendon से निकलता है, लेकिन कुछ और भी origin पिक करता है ये, proximal 2/3 of the posterior ulnar border, ठीक है। इंसर्शन पिसिफॉर्म, हैमेट एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। अब ये देखो कि ये फिफ्थ मेटाकार्पल पे जा रहा है। फिफ्थ मेटाकार्पल का मतलब क्या था, डिजिटी मिनिमाई वाले एरिया पे जा रहा है। डिजिटी मिनिमाई वाले एरिया पे जाएगा तो अल्नर डिविएशन कराएगा, क्योंकि उसको तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगी। अगर तुम फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को कॉन्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारा हाथ जो है वो डिजिटी मिनिमाई की साइड पे मुड़ जाएगा, एंड दैट इटसेल्फ इज कॉल्ड द अल्नर डिविएशन ऑफ द रिस्ट। नाउ इट्स फ्लेक्सिंग ऑल्सो एंड डूइंग एडक्शन ऑल्सो, राइट। ओके, मूविंग ऑन, ये एक रिवीजन है। प्रोनेटर टेरीज, फ्लेक्सा कार्पाई रेडियालिस, पामारिस लॉन्गस, फ्लेक्सा कार्पाई अल्नारिस। इसमें से हमने देखा था कि सारे मसल्स मीडियन नर्व से सप्लाइड है, सवाए फ्लेक्सा कार्पाई अल्नारिस के। प्रोनेटर टेरीज के दो हेड्स हैं, उन दोनों के बीच मीडियन नर्व गुजरती है। फ्लेक्सा कार्पाई रेडियालिस सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल की बोन की बेसिस पे जाता है, यहाँ पे सिर्फ सेकंड लिखा हुआ है, आप थर्ड भी याद रखें। फ्लेक्शन और एबडक्शन में हेल्प करता है, और हमने कहा था कि ये रेडियल डिविएशन में भी हेल्प करता है, बिल्कुल जिस तरह फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस अल्नर डिविएशन में हेल्प करता है, और वो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पे इंसर्ट करता है, पिसिफॉर्म और हुक ऑफ हैमेट पे भी इंसर्ट करता है। पामारिस लॉन्गस जो है वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और पामर एपिन्यूरोसिस की हेल्प में बनने में हेल्प करता है। इट इज बेसिकली पामर लॉन्गस क्या है, इट इज अ थिकनिंग ऑफ डीप फेशिया एट द रिस्ट व्हिच गिव्स द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऊपर से एक कार्पल टनल बनाता है, जिसके नीचे से आपके सारे टेंडन्स गुजरते हैं, और इनके अंदर मीडियन नर्व भी होती है। जब ये इन्फ्लेम होती है तो नर्व इन्फ्लेम होती है, और ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्रिएट कर देता है। इसका एक्शन क्या है, इट फ्लेक्सेस द हैंड एंड टाइटन्स पामर एपिन्यूरोसिस। अब हम आ जाते हैं मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर में हमारे पास एक ही मसल है और उसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के एक्शन और इनर्वेशन जो है मीडियन नर्व है। ऑलवेज रिमेंबर कि इसका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस की भी जो इनर्वेशन है वो मीडियन नर्व है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मिडिल लेयर का मसल है, बल्कि है और थोड़ा आपकी सेपरेट कर रहा है सुपरफिशियल लेयर को डीप लेयर से, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। डीप लेयर हम अभी तक नहीं गए। तो मिडिल लेयर में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है। अब इसकी मजे की चीज क्या है कि ये 4 डिजिट्स में जा तो रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मिडिल फैलिंग्स के लेवल पे स्प्लिट कर जाती है 2 टेंडन्स में, और ये दोनों टेंडन्स मिडिल फैलिंग्स की
साइड्स पे इंसर्ट होती हैं। तो ये जैसे हम बचपन में ऐसे उल्टे करके बैठ जाते थे और बच्चों को बोलते थे हमारे नीचे से गुजर के दिखाओ, तो बिल्कुल उस तरह ये दो स्प्लिट्स में बन जाती है और प्रोफंडस से कहती है कि मेरे बीच में से गुजर के दिखाओ और गो ऑन टू डिस्टल फैलिंग्स एंड इंसर्ट इटसेल्फ। या फिर यू कैन इमेजिन इट एज ओपनिंग द कर्टन्स फॉर द प्रोफंडस टू गो इन बिटवीन देम। ठीक हो गया। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन्स ओपन अप होते हैं मिडिल फैलिंग्स के लेवल पे एंड दे अटैच ऑन द साइड्स ऑफ द मिडिल फैलिंग्स एंड अलाउ दिस ब्लू कलर्ड which tendon is blue colored? This blue colored tendon is the flexor digitorum profundus जो कि डीप लेयर में पड़ा हुआ है और हम अभी पढ़ेंगे। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस डीप लेयर में है और वो डिस्टल फैलिंग्स तक जाता है। ठीक हो गया। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस की हम ओरिजिनेशन देखते हैं। ये भी कॉमन फ्लेक्सर टेंडन से ओरिजिनेशन लेता है, लेकिन इसकी ओरिजिनेशन और जगह से भी आती है, जैसे कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्नर प्रोसेस अल्ना से भी आ रहा है एंड ऑब्लिक लाइन ऑफ रेडियस। ठीक है। तो ये एक इसकी वाइड ओरिजिन है। कॉमन फ्लेक्सर टेंडन से भी लिया, फिर अल्ना से इसने क्या लिया, मिडिल एस्पेक्ट ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस, और रेडियस से इसने क्या लिया, ऑब्लिक लाइन ऑफ रेडियस। और इंसर्ट कहाँ किया, स्प्लिट्स बना के मिडिल फैलिंग्स में इंसर्ट कर दिया। ठीक है। साइड्स ऑफ मिडिल फैलिंजेस सेकंड टू फिफ्थ डिजिट्स। ठीक हो गया। थंब में हम ये काम नहीं कर रहे। थंब में हमारे पास और बहुत चीजें हैं। पामर साइड पे थंब पे हमारे पास तीन आर मसल्स हैं, तो तीनों हम हैंड वन में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ चुके तो प्लीज यूट्यूब वीडियो पे जाके हैंड वन पढ़ लें। इनर्वेशन मीडियन नर्व, और एक्शन क्या है अब, क्योंकि ये ऑल द वे मिडिल फैलिंग्स पे जाके लग रहा है, तो मिडिल फैलिंग्स के पीछे जितने भी उसके रूट में आपके जॉइंट्स आ रहे हैं उन सबको फ्लेक्स करेगा। इट फ्लेक्सेस द proximal interphalangeal joints, assist flexion of metacarpal phalangeal joints and wrist joints। ठीक है। सबकी फ्लेक्शन कराएगा, जहां जहां तक वो जिस को पास करके वो एंड तक इंसर्ट कर रहा है उससे पीछे जितने भी जॉइंट्स हैं सबकी फ्लेक्शन कराएगा। वेरी इजी। अब हम चलते हैं अपने डीप मसल्स पे। एक फ्लेक्सर ग्रुप के इंटरमीडिएट फ्लेक्सर को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस आता है। ये कहाँ से निकलता है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से निकलता है, जो कि आपका मीडियल एपिकॉन्डाइल था। थोड़ा सा अल्ना से भी लेता है, ये कॉर्नर प्रोसेस ऑफ अल्ना से, और रेडियस की एंटीरियर सर्फेस से भी लेता है थोड़ा सा, जिसको हम ऑब्लिक लाइन कह रहे थे। ठीक है। इंसर्शन क्या है, बेस ऑफ मिडिल फैलेंजेस ऑफ मिडिल 4 डिजिट्स, और फ्लेक्सेस मिडिल एंड प्रॉक्सिमल फैलेंजेस ऑफ मिडिल 4 फिंगर्स ऑफ द हैंड। ठीक है। अब हम डीप लेयर में आ जाते हैं। डीप लेयर में हमारे पास तीन मसल्स हैं एंटीरियर फोरआर्म में, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। याद रखना प्रोफंडस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी डुअल नर्व सप्लाई है। प्रोफंडस जो है ना वो पूरा फैला हुआ है, 4 डिजिट्स में जा रहा है बेचारा, डिस्टल फैलिंग्स तक जा रहा है। वो सुपरफिशियल टेंडन जो कटे हुए थे उसके अंदर से गुजर के डिस्टल फैलिंग्स तक जाके लग रहा है, इसलिए बेचारा बड़ा चौड़ा सा है। क्योंकि ये चौड़ा सा है, इसकी डुअल नर्व सप्लाई है। डुअल नर्व सप्लाई का मतलब है कि जो इसका रेडियल हाफ है दैट इज सप्लाइड बाय द मीडियल नर्व, और जो इसका मीडियल हाफ है दैट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। इट मेक सेंस, क्योंकि अल्नर मिडिल साइड पे अल्नर नर्व रन कर रही है और एंटीरियर फोरआर्म में लैटरल साइड पे मीडियल नर्व रन कर रही है। रेडियल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि रेडियल बेचारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है, इसलिए रेडियल साइड पे लैटरल साइड पे तुम्हारे पास मीडियल नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक हो गया। प्रोफंडस की डुअल नर्व सप्लाई है, बाकी दोनों नॉर्मल है, दे सप्लाइड बाय द मीडियल नर्व। नाउ वी हैव द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस क्या होता है, थंब का फ्लेक्सर। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, थंब का फ्लेक्सर। फ्लेक्सर है, फ्लेक्स करेगा, पॉलिसिस थंब में जाएगा, लॉन्गस लंबे वाला मसल है। लॉन्गस क्यों है इसका नाम, क्योंकि हम फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेवस भी पढ़ेंगे जब हम थीनर मसल्स पढ़ेंगे। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस बेचारा ऑल द वे अपने पूरे आर्म में से गुजर के आ रहा है। ब्रेवस छोटा सा थीनर मसल है, हैंड में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेट कर रहा है, चौड़ा सा मसल है, रेक्टेंगुलर सा, डिस्टल फोरआर्म में प्रेजेंट होता है, रेडियस अल्ना को ज्वाइन सा कर रहा होता है सॉर्ट ऑफ। ठीक है। ताकि प्रोनेशन करा सके। मैंने कहा था जब भी दो बोन्स पे ओवरलैप करेगा एक मसल, वो या सुपिनेशन में हेल्प कर रहा होगा या प्रोनेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। आगे चलते हैं। अब हम ये तीनों मसल्स गौर से पढ़ेंगे। पहले हम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस देखते हैं। प्रोफंडस डीप है, सुपरफिशियलिस सुपरफिशियल है, सुपरफिशियलिस प्रोफंडस से सुपरफिशियलिस है। रिमेंबर दैट। ओरिजिन क्या है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का। अब हमने कॉमन एक्सटेंसर कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन को पीछे छोड़ दिया, नॉट एक्सटेंसर, फ्लेक्सर। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन को पीछे छोड़ दिया। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म की ओरिजिन आएगी। ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की एंटीरियो मीडियल प्रॉक्सिमल अल्ना, एंटीरियो मीडियल प्रॉक्सिमल अल्ना से ओरिजिन है, कॉमन फ्लेक्सर से नहीं है। ये अल्ना से ओरिजिनेट कर रहा है प्रोफंडस हमारा, और कहाँ पे जाके लग रहा है, डिस्टल फैलिंग्स पे। Insertion basis of distal phalanxes anteriorly of the second to fifth digits. Innervation, first and second tendons by anterior interosseous nerve.
मीडियन नर्व की ही ब्रांच होती है एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व, इसको सब कंफ्यूज मत करना। रेडियल नर्व की ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व। रेडियल नर्व की जो डीप ब्रांच होती है वो सुपिनेटर का सुपीरियर बॉर्डर क्रॉस करके पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व बन जाती है। तो पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व को एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व से कंफ्यूज नहीं करना। एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व मीडियन नर्व की ब्रांच है, पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व रेडियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है। इसके फर्स्ट और सेकंड टेंडेंस आपके मीडियन नर्व से सप्लाइड है और थर्ड एंड फोर्थ टेंडेंस अल्नर नर्व से सप्लाइड है। मेक सेंस, क्योंकि अल्नर मीडियल साइड है, मीडियल साइड पे तुम्हारे थर्ड एंड फोर्थ टेंडेंस आ रहे हैं, राइट। और फर्स्ट एंड सेकंड रेडियल साइड पे आ रहे हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, क्या करेगी, डिस्टल फैलिंक्स तक जाके इंसर्ट हो रही है तो सारे जॉइंट्स को फ्लेक्स कर सकती है, जिन जिनको पास करेगी। रिस्ट जॉइंट को पास करेगी, उसके बाद आपकी मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को पास करेगी, फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को पास करेगी और फिर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को पास करेगी। सारे जॉइंट्स को फ्लेक्स कर सकती है ये। ट्रैक्चर डिजिटल प्रोफंडस हो गया। अब हम चलते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। इसको लॉन्गस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेचारा ओरिजिन ले रहा है एंटीरियर रेडियस से, लॉन्गस है ये। ब्रेविस की जब बात करेंगे तो वो फ्लेक्सर एटेनाक्युलम से ही निकल के जाके थंब में लग रहा होगा, इसलिए हम उसको ब्रेविस कहेंगे। ब्रेविस का मतलब लैटिन में होता है शॉर्ट, लॉन्गस इसलिए है इसका नाम। फ्लेक्सर है, थंब को पॉलिसिस कहते हैं और ये लॉन्गस है। तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंटीरियर रेडियस से निकल रहा है, यहाँ पे हमने देखा है एंटीरियर रेडियस से निकल रहा है और जाके कहाँ पे लग रहा है, पामर सरफेस ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब। ये बिल्कुल प्रोफंडस की तरह डिस्टल फैलिंग्स पे जा रहा है, क्योंकि ये डिस्टल फैलिंग्स पे जा रहा है तो थंब में 3 फैलिंग्स तो है नहीं, थंब में 2 फैलिंग्स है, राइट, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, तो उसके बीच में इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। तो ये किन किन चीजों को फ्लेक्स कराएगा, फर्स्ट इंटरफेरेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, दोनों को फ्लेक्स कराएगा, उनको डिस्टल फैलिंग्स में जाके इंसर्ट करा है। उसकी इनोवेशन क्या है, पामर इंटरोसिस नर्व, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। मैंने कहा था जब भी दो मसल्स के ऊपर कोई चीज ओवरलैप कर जाए तो वो प्रोनेशन कराएगी या सुपिनेशन कराएगी। ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, प्रोनेशन करा रहा है। इसका ओरिजिन क्या है, एंटीरियर और डिस्टल अल्ना, और इंसर्शन है लैटरल डिस्टल रेडियस। बेसिकली एंटीरियर डिस्टल अल्ना से निकला और लैटरल डिस्टल रेडियस पे इंसर्ट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाथ प्रोनेट हो जाएगा, ठीक है, यूं पड़ा होगा, प्रोनेट हो जाएगा। इनर्वेशन एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व जो कि मीडियन नर्व की ब्रांच है। एक्शन फोरआर्म प्रोनेशन, बहुत सिंपल है ये। हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफंडस था, इसकी डुअल नर्व सप्लाई थी। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस था जो कि लंबा इसलिए था क्योंकि ब्रेविस भी एक मसल है जो थीनर मसल्स का पार्ट होगा, हैंड 1 में पढ़ेंगे हम। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस था, हमने ये भी पढ़ा था कि एंटीरियर इंट्रोसिस नर्व मीडियन नर्व की ब्रांच